Hello बच्चों, let's read the question and the question says discuss and compare the trend in ionization enthalpy of the elements of group 1 with those of group 17 elements। तो सबसे पहले तो हम की कंसेप्ट देख लेंगे। वो लग जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, आई का डेफिनेशन देख लेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी का। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that must be supplied that must be supplied so as to remove an electron remove an electron from valence shell of an gaseous atom। तो ये शेल है, शेल of an gaseous atom। now the trend of ionization enthalpy in group 1 and group 17। तो पहले तो हम देख लेंगे कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 में as we go down the group there is a decrease in ionization energy। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ई से। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी दे आर बोथ सेम, सो देयर इज अ डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर। दिस इज एविडेंट this is evident from the values, क्योंकि अगर हम इनका वैल्यूज देखेंगे, सबसे पहले ग्रुप 1 लिख लेंगे। ग्रुप 1 के मेंबर जो होते हैं वो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम। तो इनके जो वैल्यूज है आयनाइजेशन एंथैल्पी के, ये सारे किलो जूल पर मोल में है। किलो जूल पर मोल लिख लेंगे यहाँ पर। और इनके जो वैल्यूज स्टैंड आउट होते हैं वो है 520, 496, 419, then for rubidium it is 403, cesium it is 374। as we can see the ionization enthalpy is decreasing as we are going down the group। for group 17 अभी हमारे पास क्या दिया है, ग्रुप 17 दिया है। सो ग्रुप 17 के लिए क्या हो जाता है, हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसका जो वैल्यूज होता है वो होता है 1681, देन 1255, 1142, 1009, 917। everything is in kilojoule per mole। so from this it is clearly seen that down the group what is happening, down the group जो हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू हो रहा है डिक्रीज। सो हम क्या कह सकते हैं कि as we are going from down the group, that is from lithium to cesium in group 1, the ionization enthalpy is decreasing। now the trend, ये जो ट्रेंड है it can be explained on the basis of एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो हम बोल सकते हैं कि पहला, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज increases by addition of an extra shell, by addition of an extra shell, or we can say a new principal energy shell। in bracket we can write new principal energy shell। so this will give rise to less z effective value, that means effective nuclear charge that will make
easier for the removal of an electron, Then addition of new shells, the shielding or the screening effect increases. When we add, in the second point we can write addition of new shell increases the screening, or you can say the shielding effect. As a result, Z effective, that is the effective nuclear charge, decreases, and there is decrease in ionization enthalpy value. The combined effect of these two decreases the ionization enthalpy as we go down the group. तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों का combined effect के कारण क्या हो जाएगा, ionization enthalpy जो है down the group क्या होगा, group 1 and group 17 में decrease होगा. अगर हम group 1 and group 17 को compare करें, group 1 and group 17 को, तो उसमें क्या हो जाएगा, और उसमें अगर हम सेकेंड पीरियड को कंसिडर करें, सेकेंड पीरियड, तो इसमें क्या होगा कि the electrons are added in the same principal shell, so this will imply that Z effective न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा. इलेक्ट्रॉन्स will be held more tightly as the atomic number increases, will be held more tightly as atomic number increases, and this will imply क्या, कि साइज जो है वो कम हो जाएगा, और साइज कम होने के कारण क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगा अक्रॉस अ पीरियड. तो अक्रॉस अ पीरियड हमेशा उसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका सेकंड पीरियड होगा, ये ग्रुप 1 का मेंबर है, वो है लिथियम, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी 520, पर फ्लोरीन का इट्स क्वाइट हाई, दैट इज 1681, एंड दैट इज द रीजन बिकॉज ये क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है सेम प्रिंसिपल शेल में ऐड होने के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होगा तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगा. अगर सिमिलरली हम थर्ड पीरियड में कंसिडर करेंगे, सोडियम में 496 है, क्लोरीन में 1255 है, पोटेशियम 419, 1142, सो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि वो पीरियड के ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 में ग्रुप 17 का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा उसका ज़्यादा होगा ग्रुप 1 से. Hope you understood it well. Best of luck.